یہ حضرت دادا عنایت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ دادا عنایت شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت صوفی نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں، اور یہ جو آستانہ ہے حضرت خواجہ غلام حسن سرکار چشتی ابوالعلائی جہانگیری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ اور یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دو مزارات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ہندوستان روحانیت کی سرزمین ہے، صوفیاء کرام کی سرزمین ہے۔ اس ملک میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہر جگہ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام، بزرگان دین ہیں۔ اس وقت ہم اتر پردیش کے شہر رامپور کے قریب ہی ایک قصبہ ملک ہے، اور ملک کے قریب ایک بہت بڑی بارگاہ ہے، ایک بہت بڑا آستانہ ہے۔ بھینسوڑی شریف کے نام سے یہ جگہ جانی جاتی ہے، اور بھینسوڑی شریف میں یہ جو آستانہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس آستانے کے کیمپس میں بڑے بڑے بزرگان دین آرام فرما رہے ہیں۔ یہ بزرگان دین ماضی قریب کے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ایسی شہرت عطا فرمائی ہے کہ بہت سارے بزرگان دین کو اللہ رب العزت نے وہ شہرت نہیں عطا فرمائی جو ان بزرگوں کو شہرت ملی ہے اور عظمت ملی ہے۔ یہ جو آستانے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے اسکرین پر، یہ حضرت دادا عنایت شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ دادا عنایت شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت صوفی نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی ہیں، اور یہ جو آستانہ ہے حضرت خواجہ غلام حسن سرکار چشتی ابوالعلائی جہانگیری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ اور یہ جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دو مزارات ہیں، ایک تو حضرت عزیز میاں سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، اور دوسرا انہی کے بیٹے حضرت منع میاں سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے، جو حضرت لیاقت میاں چشتی جہانگیری ابوالعلائی کے نام سے بہت زیادہ مشہور تھے۔ تو یہ خوبصورت کیمپس ہے، روحانیت سے بھرپور یہاں کا منظر ہے، شام کا یہ روحانی ماحول ہے۔ اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر ہمیشہ رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجدیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہیں، اور جو آستانے ہوتے ہیں، جو مومن کی قبریں ہوتی ہیں، وہ مومنین کی قبریں بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہیں۔ تو عام قبرستانوں میں دہشت ہوتی ہے، لیکن صوفیاء کے آستانوں پر انوار و تجلیات کی بارشیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ انہوں نے زندگی میں اپنے رب کا نام لیا، اللہ رب العزت نے پھر ان کو وہ انعام عطا فرمایا، وہ زندگی عطا فرمائی کہ آج دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے آستانوں پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ حضرت سب سے پہلے آپ کو جس آستانے پر ہم زیارت کرا رہے ہیں، یہ حضرت الحاج صوفی محمد عنایت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے۔ مظہر حق شان ختم المرسلین، درمیان اولیاء مسند نشیں، نیر برج شریعت شاہدیں، گوہر درج طریقت محجبیں۔ یہ پورا کلام یہاں پر لکھا ہوا ہے حضرت الحاج صوفی محمد عنایت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ میں آپ کو تھوڑی سی اور تاریخ بتا دیتا ہوں حضرت کی جو تاریخ وصال ہے۔ یہاں پر تاریخ وصال بھی لکھی ہوئی ہے، 4 شوال المکرم بروز یکشنبہ 1360 بمطابق 26 اکتوبر 1941۔ یہ حضرت صوفی عنایت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وصال ہے، میں نے آپ کو دکھا دی۔ حضرت صوفی عنایت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت دادا میاں جو نبی رضا شاہ صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور لکھنؤ کے اسلامیہ قبرستان میں ان کا مزار مبارک ہے۔ یہ آستانہ آپ نے ان کا دیکھ لیا، نبی رضا شاہ صاحب کے بھائی ہیں، ان کا آستانہ لکھنؤ میں اسلامیہ قبرستان میں، اور انہی کے بھائی ہیں حضرت صوفی عنایت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہاں پر ایک آستانہ اس پہ بھی ہم آپ کی حاضری کراتے ہیں۔ یہ حضرت محمد راحت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ حضرت کے بیٹے ہیں صوفی عنایت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، یہ بیٹے ہیں محمد راحت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور وہ وہاں باہر آستانہ اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہو، حضرت فصاحت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت کے بیٹے ہیں، راحت حسن شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، یعنی صوفی عنایت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ پوتے ہیں۔ اب آئیے اس آستانے پر بھی آپ کی حاضری کراتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بارگاہ ہے، اور آپ حضرت صوفی عنایت حسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں اور طالب بھی ہو گئے تھے۔ اب آپ کو میں واقعہ بتاتا ہوں کہ حضرت خواجہ حسن سرکار رحمۃ اللہ علیہ ویسے تو مرید ہیں دادا نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن جب حضرت دادا نبی رضا شاہ صاحب کا وصال ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں بنگلہ دیش چلے گئے تھے، جیسا کہ مجھے یہاں کے خادم صاحب نے بتایا، بنگلہ دیش چلے گئے تھے، اور بنگلہ دیش جانے کے بعد میں حضرت نے، جو بنگلہ دیش میں حضرت بزرگ ہیں چشتی جہانگیری سلسلے کے، انہوں نے فرمایا کہ آپ کو جو بھی فیض ملے گا حضرت صوفی عنایت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ تو وہ یہاں آئے اور صوفی عنایت
इनायत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में रहे और यहाँ से फैज़ हासिल किया। हज़रत ख्वाजा हसन सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने इनके तालिब भी हुए। हज़रत ख्वाजा हसन सरकार सूफ़ी इनायत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के तालिब हुए और फिर उसके बाद में चिश्ती जहांगीरी अबुल उलाई सिलसिले को फ़रोग़ दिया। मुझे यहाँ के खादिम साहब ने बताया कि हज़रत अब्दुल हई शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो बांग्लादेश में हैं, उन्होंने ये फ़रमाया था हज़रत ख्वाजा हसन सरकार से कि आपसे हमारा सिलसिला बहुत उरूज पे पहुँचेगा और आपके ज़रिए इस सिलसिले को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा। और उस लफ्ज़ की यह सच्चाई भी है। आप देखिए कि हज़रत ख्वाजा हसन सरकार रहमतुल्लाह अलैह अभी माजी करीब के बुज़ुर्ग हैं, लेकिन बहुत कम वक्त में चिश्ती जहांगीरी अबुल उलाई सिलसिले को वो फ़रोग़ बख्शा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सिलसिले का वो काम इनसे लिया है कि जिसको देखो वो हज़रत ख्वाजा हसन सरकार का दीवाना नज़र आता है। जिन्होंने भी एक मरतबा हज़रत ख्वाजा हसन सरकार से मुलाकात कर ली तो वो इन्हीं का दीवाना हो जाता है। और इसी वजह से चिश्ती जहांगीरी अबुल उलाई सिलसिले की ये खुसूसियत है, जो भी इस सिलसिले के मुरीद होते हैं ख़ास तौर से, तो उन पर ये जहांगीरी अबुल उलाई रंग चढ़ जाता है और वो एक ख़ास तरह के लिबास में नज़र आते हैं। तो ये हज़रत ख्वाजा हसन सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह है इस वक्त जहाँ हम आपकी हाज़िरी करा रहे हैं। ये लिखा हुआ भी है हज़रत इल्हाज सूफ़ी मोहम्मद हसन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। अब आइए बाहर से आपको थोड़ी सी ज़ियारत कराते हैं। चिश्ती जहांगीरी अबुल उलाई सिलसिले में ख़ास तौर से सिमा को बड़ी अहमियत हासिल है, सखावत को बड़ी अहमियत हासिल है और ये दोनों चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं इस सिलसिले में, सिलसिले के मुरीदों में, अक़ीदतमंदों में। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये कलाम बहुत सुना करते थे, फ़ारसी के कलाम। यहाँ पर लिखा हुआ भी है तो सुल्तान साहिब सरी रामदी अला कुल्ली शैइन क़दीर आमदी बसर ताज इन्नी अनल्लाह ज़दा समीउन अलीमुम बसीर आमदी। तो ये हज़रत ख्वाजा हसन सरकार रहमतुल्लाह अलैह, फिर इनके बाद इनके भांजे हुए हज़रत अज़ीज़ मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो जानशीन थे इनके, और फिर उनके बेटे सज्जादा नशीन बने मुन्ने मियाँ रहमतुल्लाह अलैह। उनके आस्थाने पर भी हम आपकी हाज़िरी कराते हैं। ये खूबसूरत सा कैंपस है, रूहानियत से भरपूर इस वक्त का माहौल है। इस सिलसिले में अगर आप भी मुरीद हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जावेद मियाँ के वालिद मोहतरम थे हज़रत मुन्ने मियाँ और उनके दादा थे हज़रत अज़ीज़ मियाँ सरकार, तो उन्हीं के आस्थाने पर अब आपकी हाज़िरी करा रहे हैं। इस सिलसिले में अगर आप भी मुरीद हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बेशुमार वाक़यात हैं इन बुज़ुर्गों के और बेशुमार करामतें हैं इन सूफियाए किराम की। तो अगर आपको कुछ भी पता हो या आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा मामला हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा कर सकते हैं। देखिए ये जो आस्थाना है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, महबूबुल औलिया शेखुल मशाइख सूफ़ी लियाकत हुसैन शाह उर्फ़ मुन्ने मियाँ कादरी चिश्ती अबुल उलाई जहांगीरी हसनी अज़ीज़ी। तो ये हज़रत मुन्ने मियाँ का मज़ार मुबारक है और ये मुन्ने मियाँ के वालिद मोहतरम ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल अज़ीज़ मियाँ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कादरी चिश्ती अबुल उलाई जहांगीरी हसनी। तो ये हज़रत अज़ीज़ मियाँ ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल अज़ीज़ मियाँ चिश्ती जहांगीरी का मज़ार मुबारक है। तो मैंने आपको पूरे आस्थाने की ज़ियारत करा दी। अब इस सिलसिले का जो फैज़ है वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। अगर मैं खानकाह मुनी मियाँ पटना की बात करूं तो खानकाह मुनी मियाँ पटना के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं हज़रत मुनीम पाकबाज, उन तक भी ये सिलसिला पहुंचा और फिर उन्होंने भी इस सिलसिले को बहुत फ़रोग़ दिया। और इस वक्त खानकाह मुनी मियाँ के सज्जादा नशीन हैं हज़रत डॉक्टर प्रोफेसर सैयद शाह शमीमुद्दीन मुनीमी साहब, जो इसी सिलसिले के रंग में रंगे हुए नज़र आते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि अगर इस हिंदुस्तान में इस वक्त तसव्वुफ़ की चलती फिरती कोई तस्वीर है तो वो सैयद शाह शमीमुद्दीन मुनीमी साहब हैं। उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो सिलसिले चिश्तिया जहांगीरिया अबुल उलाइया का फैज़ान आपको ज़रूर मिलेगा। वैसे तो ये सिलसिला मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों से होते हुए हज़रत सैयदना अमीर अबुल उला तक पहुँचता है, लेकिन इस सिलसिले में चिश्ती जहांगीरी अबुल उलाई सिलसिले में जो खुसूसी रंग है वो चिश्ती साबरी रंग है। और यहाँ पर शिजरा लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप बुज़ुर्गों की रिवायत पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि बुज़ुर्ग एक ही हैं, लेकिन उनको नक्शबंदी खिलाफत भी है, उनको सोहरवर्दी खिलाफत भी है, चिश्ती खिलाफत भी है। और उस बुज़ुर्ग पर कोई एक ख़ास रंग चढ़ जाता है। जैसे इमाम रब्बानी वैसे तो नक्शबंदी मुजद्दिदी हैं, लेकिन तमाम सिलसिलों की खिलाफत उनको भी हासिल है। उसी तरह से तमाम बुज़ुर्गों को मुख्तलिफ़ सलासिल की खिलाफत हासिल होती है, लेकिन कोई एक ख़ास रंग उन पर चढ़ जाता है। अब यहाँ चिश्ती जहांगीरी अबुल उलाई रंग है ख़ास तौर से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद नबी रज़ा शाह साहब, सुल्तानुल आशिकीन हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद इनायत हसन शाह साहब, तो ये दोनों जो लोग हैं इन्हीं के मुरीद हैं हज़रत ख्वाजा हसन सरकार साहब। इनके मुरीद हैं नबी रज़ा शाह साहब के और ख्वाजा सूफ़ी इनायत हसन शाह साहब के तालिब हैं।
तो ये इनके जो पीर व मुर्शिद हैं वो बांग्लादेश में है। ये नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, शम्सुल आरिफीन हज़रत मौलाना सैयद मखसूसुर रहमान उर्फ ताहा मियाँ शाह जहांगीर सोम, ताजुल आरिफीन हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद आरिफुल हई उर्फ कमाल मियाँ शाह जहांगीरी, सज्जादा नशीन दरबार आली जहांगीरी मिर्ज़ा खेल चटगांव बांग्लादेश। तो ये आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद में जो ये सिलसिला है, ये हज़रत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रदी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हज़रत शाह नूर मोहम्मद चिश्ती झंझानवी रहमतुल्लाह अलैह, फिर हज़रत शाह अब्दुल रहीम शहीद विलायती रदी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हज़रत शाह अब्दुल बारी अमरोहवी, फिर हज़रत शाह अब्दुल हादी अमरोहवी, फिर हज़रत शाह उज़्दुद्दीन रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी अमरोहा में है, फिर हज़रत शाह मोहम्मद मक्की, फिर हज़रत शाह मोहम्मदी, फिर हज़रत शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी, इलाहाबाद में शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबादी हैं। तो ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचता। फिर उसके बाद में गंगो शरीफ हज़रत शेख अबू सईद गंगोही, फिर निज़ामुद्दीन बल्खी, फिर हज़रत शेख जलालुद्दीन थानेसरी, फिर शेख जलालुद्दीन थानेसरी के बाद में हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह हैं। और शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के बाद में फिर ये रिदौली शरीफ सिलसिला है। रिदौली शरीफ से फिर पानीपत हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती और मखदूम जलालुद्दीन कबील औलिया, और फिर यह सिलसिला हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती से होते हुए हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी तक पहुँचता है। तो चिश्ती जहांगीरी अबुल उलाई रंग है इस खानकाह में, उसी का फैज़ है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वैसे तो ये वीडियोज़ बहुत ज़्यादा काफ़ी नहीं होती हैं मालूमात के लिए, हमें इस बात का पूरा एतराफ़ है कि जो कुछ इन आस्थानों पर फ़यूज़ व बरक़ात हैं या इन बुज़ुर्गों के जितने भी वाक़यात हैं और इनके जो कमालात हैं, हम 10-20 मिनट की वीडियोज़ में उनको नहीं समेट सकते। इन वीडियोज़ को आप तक पहुँचाने का मकसद ही सिर्फ इतना है कि आपके अंदर इन बुज़ुर्गों की तारीख़ को सुन कर के एक चिंगारी लगे और वो चिंगारी शोला बने, ताकि हम जो आप तक पहुँचा रहे हैं इन बुज़ुर्गों की तारीख़ आपको पढ़ने का शौक़ हो जाए और आपके अंदर भी वो जज्बा पैदा हो जाए कि आप इन बुज़ुर्गों की तारीख़ पढ़ें और ये कितने कमाल के बुज़ुर्ग थे, ये कितने अजीम बुज़ुर्ग थे, ये कितने आला मुसलमान थे। इनकी तारीख़ को आप पढ़ें और फिर इन्हीं के रास्ते पर चलने की कोशिश करें। और मौजूदा दौर में जो हालात हैं, अगर हमने सूफियाए किराम के रास्ते को नहीं अपनाया तो हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने ये सिखाया था कि समाज को कैसे जीतना है, समाज को कैसे फ़तह करना है। इसी वजह से बुज़ुर्गान दीन ज़िद्दी नहीं थे, इसीलिए वो हट धर्मी नहीं करते थे, वो समझौते करते थे, वो सुलह करते थे, वो बर्दाश्त करते थे। उनके अंदर टॉलरेंस थी, उनके अंदर रवादारी थी, उनके अंदर जो है पीसफुल को एग्जिस्टेंस थी। तो इस वजह से वो जंगलों को मंगल किया करते थे और दुश्मनों के दिलों को जीत लिया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए। और इसी वजह से इस आस्थाने पर ये जो खूबसूरत कैंपस आप देख रहे हैं, बड़ा वसी आंगन है, तो आप बुज़ुर्गों की सोच का, इनके नज़रियात का और इनके दिल की वसअत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ दीवार की किसी भी पिलर पर यह नहीं लिखा हुआ है कि इस खानकाह में फ़लाँ लोग नहीं आ सकते हैं, बल्कि दरवाज़ा सबके लिए खुला है। इस खानकाह की दीवारें सबके लिए हैं, इसका आंगन सबके लिए है। टीका हो, टोपी हो, पगड़ी हो, टाई हो, बुरका हो, साड़ी हो, सब हज़रत ख्वाजा हसन सरकार की बारगाह में आकर के अपनी दुआएं कर सकते हैं। सब हज़रत दादा इनायत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का वसीला दे करके दुआएं कर सकते हैं। तो सब यहाँ आकर के दुआएं कर सकते हैं। ये दरवाज़ा और ये दरबार सबके लिए खुला है। अगर हम भी अपनी सोच, अपने नज़रियात, अपनी फ़िक्र को उसी तरह से कर लें तो यकीन जानिए कि हर नफ़रत हार सकती है और मोहब्बत को एक मरतबा फिर से फ़तह हासिल हो सकती है। हज़रत ख्वाजा इनायत शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह या हज़रत ख्वाजा हसन सरकार या मुन्ने मियाँ या हज़रत अज़ीज़ मियाँ या हज़रत नबी रज़ा शाह साहब या इस सिलसिले के कोई भी बुज़ुर्ग और इस सिलसिले के बुज़ुर्गों के वाक़यात अगर आपको भी याद हों, इनकी करामतें आपको पता हों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करिएगा, ताकि सूफियाए किराम के पैगाम को, इनकी तारीख़ को और इनकी ज़िंदगियों को जो हमने ये सिलसिला शुरू किया है आगे बढ़ाने का, ये सिलसिला मज़ीद लोगों तक पहुँचे और लोगों को बुज़ुर्गान दीन का फैज़ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम।